Hello everyone, welcome to our channel, and today I am going to introduce a course that is communication engineering. So in communication engineering it is important to understand what is a communication system. So to understand a communication system, here a simple or you can say basic block diagram for a communication system, or you can say for various type of communication system. Clear? So to understand the various type of communication, it is necessary to understand the basic block diagram of a communication system. And the basic block diagram of communication system consists the several blocks, like first one is the information source. Second one is the input transducer. Third is transmitter. Fourth one is a channel. Fifth is receiver. Sixth is the output. Transducer. And the last one is information user. So in our basic block diagram of a communication system, these are the various blocks. Clear? So one by one we can understand the purpose of each and every block of our basic block diagram of a communication system. So this is the basic block diagram of communication system. So our first block is information source, which generate the original signal, and that original signal is called message signal. So these message signals are the various type of message signals, like you can see here. First one is audio or speech signal. Second one is video and facsimile, and third one is the data, or you can say internet data. So these are the basic message signals produced from the information source, and you can say these are the
baseband signals having low frequency. Okay, so next block is input transducer, and what is the purpose of this input transducer is to convert non-electrical signals to electrical signals. Okay, so audio signal and speech signal, video and facsimile and the data, these are the non-electrical signals. So input transducer क्या करेगा, जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा. नेक्स्ट ब्लॉक इज ट्रांसमीटर. सो ट्रांसमीटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ट्रांसमीटर का रोल ये होगा कि जो हमारा सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है जो हमारा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी और चैनल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ट्रांसमीटर का जो रोल है वो ये है कि जो भी सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रहा है वो चैनल की कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना चाहिए. क्लियर? सो ट्रांसमीटर का काम इतना है कि चैनल के जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स से सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है और चैनल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको मैच कराना. सो यहाँ पे वेरियस प्रोसेस होते हैं ट्रांसमीटर पे to perform these functions, and that is you can say analog to digital converter and encoding or modulation. Clear? So in transmitter here are some subsystems, that is first is A to D converter, second is encoder, and third one is modulator. So these are the subsystems a transmitter have. Clear? One more thing about the input transducer, there are some examples in the form of microphones. input transducer की तरह work करेगा, and you can say computer keyboard, and one more example is CCD camera. ओके, सो माइक्रोफोन कैसे, जैसे हम लोग जब बात करते हैं माइक का यूज़ करके, तो हमारे पास वहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है, जिसको माइक्रोफोन को हम लोग अपने कॉलर पे यूज़ कर लेते हैं, या माइक के फॉर्म में हमारे पास माइक्रोफोन होता है. तो हम जो बोल रहे हैं ये हमारा क्या है, ह्यूमन स्पीच सिग्नल है, या आप इसको ऑडियो सिग्नल भी कह सकते हो. तो ये क्या है, हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है. ऑडियो एंड स्पीच सिग्नल, दीज आर दी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. माइक्रोफोन क्या करता है, इन नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यानी स्पीच सिग्नल को फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और ट्रांसमीटर पे एज अ इनपुट दे देता है. सिमिलरली फॉर कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है नंबर्स के फॉर्म में या अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हम लोग जो इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, बट दीज आर दी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. कीबोर्ड के थ्रू जब सिग्नल जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होता है, क्योंकि कीबोर्ड के बाद जितनी भी वायरिंग है, जो कीबोर्ड आपका सीपीयू मॉनिटर इन सब से कनेक्टेड जो होता है, तो क्या होता है कि एक्चुअली कीबोर्ड आपका सीपीयू से कनेक्टेड है, देन सीपीयू मॉनिटर पे उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा. सो योर कीबोर्ड टेक्स्ट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और
जो है ये कीबोर्ड जो है ये एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क करेगा। जो आपके नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा एंड अकॉर्डिंगली मॉनिटर पे हमको आउटपुट प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली फॉर सीसीडी कैमरा, सो सीसीडी कैमरा में जो इमेजेस हैं और जो पिक्चर्स हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह होती हैं जिनको हम कैप्चर करते हैं। देन जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ट्रांसमीटर तक जाती हैं एज अ इनपुट, और ट्रांसमीटर उनको चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करता है। देन रिसीवर एंड आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू इंफॉर्मेशन सोर्स के पास हम लोग टीवी चैनल्स पे इसको देख पाते हैं। क्लियर? सो इनपुट ट्रांसड्यूसर के बारे में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। दीज आर दी माइक्रोफोन, कंप्यूटर कीबोर्ड, सीसीडी कैमरा, एंड देन ट्रांसमीटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ट्रांसमीटर के पास कुछ सब सिस्टम्स होते हैं एंड दी सब सिस्टम्स आर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनकोडर एंड मॉड्यूलेटर। एंड ट्रांसमीटर मॉडिफाई द बेस बैंड सिग्नल फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन मीन्स सोर्स इन्फॉर्मेशन को चैनल, जो सोर्स इन्फॉर्मेशन से मैसेज सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चैनल की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करा के एफिशिएंट ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराता है। सो ट्रांसमीटर मॉडिफाई द बेस बैंड सिग्नल फॉर द एफिशिएंट ट्रांसमिशन बाय मैचिंग द सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स एंड द channel. Okay, so now come to the next block, that is the channel. So what is channel? Channel is a medium of choice. means channel हमारी choice है जिसको हम लोग choose करते हैं according to the communication system. So different type of communication system have different type of channels. So there are various channels like twisted copper wires, coaxial cables, and optical fiber cables, or you can say radio links. Clear? Or you can say wireless medium. Okay, so these are the various channels or the various mediums. Clear? Now the next block is receiver. So receiver is a block which reprocess the signal received from the channel by reversing the signal modification occur at the transmitter. यानी रिसीवर क्या करेगा, चैनल से हम जो भी रिसीव कर रहे हैं उसमें फर्दर रीप्रोसेसिंग करेगा। जो भी प्रोसेस ट्रांसमीटर में हुए हैं उनका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ट्रांसमीटर में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हुआ है, देन एनकोडिंग हुई है एंड आफ्टर दैट मॉड्यूलेशन हुआ है, तो रिवर्स प्रोसेस यहाँ कैसे होगा, मॉड्यूलेशन हुआ है तो यहाँ पे डी मॉड्यूलेशन होगा, डी मॉड्यूलेशन, देन डिकोडिंग एंड आफ्टर दैट digital to analog conversion. So receiver also have the various subsystem. These are the demodulator, decoder or digital to analog converter. Further signals जो receiver से as a output हमें मिलेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, next block पे जाएंगे, and the next block is output transducer which convert the electrical signal into the non-electrical signal. Convert the electrical signal to non-electrical signals, or you can say original सिग्नल। जैसे कि अगर हम लोग बात की थी माइक्रोफोन, एक एग्जाम्पल लिया था कि माइक्रोफोन इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा था और वहाँ पे हमारा जो स्पीच सिग्नल था जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा था। सिमिलरली आउटपुट ट्रांसड्यूसर में हमारे पास स्पीकर होगा। तो स्पीकर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पीकर में आएगा और जो आउटपुट स्पीकर का हमें मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा,
ओरिजिनल सिग्नल होगा जो इन्फॉर्मेशन सोर्स से जनरेट हुआ था एज अ ऑडियो और स्पीच सिग्नल। सो जो इन्फॉर्मेशन, जो आउटपुट हमें सिग्नल मिलेगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर का, वो जाएगा इन्फॉर्मेशन यूज़र तक। और ये जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। मीन्स कम्युनिकेशन इज़ व्हाट द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन from one point to another point, or you can say from information source to information user. So this is our complete basic block diagram of communication system. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मॉड्यूलेशन। मीन्स ट्रांसमीटर साइड पे जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो क्या होता है, एंड रिसीवर साइड में जो डीमॉड्यूलेशन हो रहा है वो क्या प्रोसेस होता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो पॉइंट्स हैं, दीज आर दी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।